Hello and welcome to GK's English Bulletin. I am Myra. Let's begin with the headlines first. On the Foundation Day of CRPF, the Prime Minister congratulated the soldiers, said the role of CRPF has always been commendable. Encounter between security forces and terrorists in Kulgam, army jawan got injured. Asif Ahmed Badru started a unique poultry farm in Pulwama, earning good money from the world's most expensive chicken, Kadaknath. Divisional Commissioner Kashmir PK Paul visited Imam Bara Badgam, inspected the arrangements being made for Muharram. Now news in detail. On the occasion of the 84th Rising Day of the Central Reserve Police Force, Prime Minister Narendra Modi greeted the Jawans and their families. He said, be it security-related challenges or humanitarian challenges, the role of CRPF has always been commendable. PM Modi said in a tweet, congratulations to all the brave Jawans, their family members on the Foundation Day of CRPF. The CRPF has established a reputation for courage and outstanding service. Be it security-related challenges or humanitarian challenges, the role of CRPF is commendable. Encounter broke out between security forces and terrorists in Kulgam. During this, the presence of 2 to 3 terrorists came to the fore. An army jawan was injured in this. He was given first aid. After receiving information about the terrorist, a search operation was started at Katpura in Kulgam district. Seeing the cordon tightening, the terrorist opened fire on the joint team of security forces. After this, the security forces also retaliated. During this, an army jawan was injured due to bullet injuries. Police officials said that the search is on for the terrorists. The joint team is running an operation in the entire area so that the terrorists can be caught. A young Asif Ahmed Badru has started a unique poultry farm in Pulwama, South Kashmir, in which he has kept the world's most expensive chicken, Kadaknath, and he is also earning good money from this poultry farm. Giving information about his business, he said that he earns well from this poultry farm, and on the other hand, if the rest of the youth of Kashmir also do the work of poultry, then they will earn well and unemployment will also end from here. नाम है आसिफ अहमद बडरू। ये फार्म है कड़कनाथ हम रखते हैं यहाँ। देसी ब्रीड है प्योर। और यहाँ रखते हैं सोनाली, वाइट लेग हरन। हम आगे से ब्रह्मा भी लाएंगे, फंटा भी लाएंगे और बाकी ब्रीड भी लाएंगे यहाँ पे। हम इसको बोलते हैं कड़कनाथ। इसका काला मीट होता है। इसका अंडा 50 रुपये में बिकता है। हम यहाँ होलसेल में 650 में एक पीस देते हैं और बाहर में 1 लाख में हो जाता है एक पीस। हमने ये पंजाब से लाया है, बल्कि फॉरेन ब्रीड है। ये कैंसर में होता है, रिहार में, डिस्क में, जो भी बीमारी हो उससे बेहतर खाना है। चिकन में हाई प्रोटीन ज़्यादा है, फैट इसमें कुछ भी नहीं है। लोग बॉयलर खाते हैं, उसमें फैट से वो 40 दिन में बढ़ जाता है। इसको बनने में पूरा 6 महीने लगते हैं। हम लाते हैं यहाँ गुरदासपुर से लाते हैं, पंजाब से, श्रीनगर में बेचता है, यहाँ शोपियान में बेचते हैं। हम बहुत सारी जगहों पे हम सेल करते हैं यहाँ पे। तो बढ़िया काम है। जो भी मान लो कि बेरोज़गार हो, मेरे ख्याल से उसको ये फार्म स्टार्ट करना पड़ेगा तो बेरोज़गारी सब दूर हो जाएगी। कुछ भी खर्चा नहीं आता है। अगर मान लो कि हम 50,000 में शुरू करेंगे तो फिर भी ठीक है, हाँ गुजारा हो जाएगा। बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। बॉयलर में मोटिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है।
फीड का खर्चा भी बहुत कम होता है। ये घास वास खाते हैं और हम उसको बाजरे डालते हैं, दाना डालते हैं, फीड डालते हैं कभी कभी। यहाँ पहुँचना चाहिए। बाहर में इतना गर्मी है, फिर भी यात्री आ रही थी, बोल रहे थे साइड रखो गाड़ी। हम बोल रहे थे यार हमारी गाड़ी में माल है, मुर्गे हैं, मर जाएंगे, फिर भी नहीं मानते थे। नहीं, खाली 3 पीस मरे हुए, बाकी अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। Divisional Commissioner Kashmir P.K. Pol along with Municipal Council President Mushtaq Ahmed Bhatt visited Imam Bara Budgam and took stock of the arrangements made for the process of Muharram there so that the people present there do not face any kind of trouble. During this time, Divkam along with other district officials also visited Markazi Imam Budgam before Muharramul Haram and took stock of the arrangements being made for Muharram, whereas Divkam also took stock of the holy month of Muharramul Haram. During this, he took stock of the arrangements being made there. He directed the officers to ensure all necessary arrangements, including restoration and installation of street lights, uninterrupted power, cleanliness drive, and water supply in all areas. या जो परमिटेड रूट्स है उस पर प्रोसेशन निकलते हैं, उसमें कोई डिफिकल्टीज ना हो, वो देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बडगाम में बड़े पैमाने पर आबादी रहती है कम्युनिटी की, मागाम में भी रहती है, जडीबल साइड में भी रहती है। ये 2-3 एरियाज़ को मैं जाऊँगा। जो मेन सफाई का इंतज़ाम है, बाकी डॉक्टर हॉस्पिटल्स का इंतज़ाम है, वो देखूँगा। डेफिनेटली जो है यहाँ जो मेन इमाम बाड़ा है जहाँ मैं खड़ा हूँ, इंतज़ामात अच्छे हैं। जो पुराना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और एक यहाँ एक सोलर का प्लांट दिखाया, पार्क भी दिखाई, जिसमें थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उसमें जो है डेफिनेटली अप्रोप्रिएट लेवल पर डिसीजंस हुए हैं। जो पहले से परमिटेड रूट्स है उन रूट्स पर हम इंतजामात करके रखेंगे और उसी रूट से जो है कम्युनिटी के सभी रहनुमाओं को रिक्वेस्ट की है कि उसी रूट से जाएं। Demonstration by the Pashupalan Sangharsh Samiti today regarding the increase in GST on milk products. The protesters expressed their displeasure by shouting slogans. The protesters said that on one hand it is said by the government that work is being done to promote agriculture and dairy, and on the other hand cattle farmers are being harassed by imposing GST on milk products. They demanded the government to remove GST from all these products at the earliest. GST पे प्रोटेस्ट है, 5% GST में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार हाय 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 हाय, मोदी सरकार करो सियापा हाय 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 हाय। आज प्रोटेस्ट पूरे देश भर में है कि मोदी सरकार को जो 5% दूध पैदा करने वाले 2 या 3 पशु रखने वाले लोगों पे जो अत्याचार मोदी सरकार ने शुरू किया है करने के लिए 5% GST लगा दिया उस पर। इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट है कि मोदी सरकार को ये 5% GST वापस लेना चाहिए, क्योंकि पशुपालक जो हैं, दूध पैदा करने वाले लोग जो हैं, वो गरीब परिवार है, किसान हैं बेचारे, उन पे भी मोदी सरकार ने उनको भी नहीं छोड़ा है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को और 12% से 18% तक इन्होंने मशीनरी पर लगाया है। दूध निकालने वाली मशीनें हैं या जो भी दूध उत्पादन के लिए मशीनें काम आती हैं, उस पर 12 से 18% मोदी सरकार ने जो उस पर टैक्स लगाया है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार अपने ये टैक्स जो दूध उत्पादकों पर लगाए हैं सारे के सारे वापस लेने चाहिए इनको, नहीं तो दूध का जो किसान है जिसकी आय डबल करने की बात करते हैं, वो किसान मारा जाएगा, वो किसान दूध पैदा नहीं कर पाएगा। पहले ही इतनी ज़्यादा महंगाई है इस देश के अंदर, और उसके बाद उससे मोदी सरकार ने और टैक्सेस लगा दिए। इन टैक्सों के विरोध में आज पूरे देश भर में हमारा विरोध है। हम चाहते हैं कि मोदी सरकार टैक्स वापस ले, और दूसरा ये जो वो दूध पैदा करने वाले लोग हैं इनको मनरेगा के तहत लगाया जाए। जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट है उसका C+2 जो है वो इस पर लागू किया जाना चाहिए, तब जो किसान है जो बच सकता है। और मोदी सरकार की जो बाकी नीतियाँ हैं वो किसान विरोधी नीतियाँ हैं, किसान के खिलाफ नीतियाँ हैं सारी की सारी। ये 5% GST किस लिए लगाया मोदी सरकार ने? दूध उत्पादन करने के लिए। जो दूध लेने वाले लोग हैं उनका क्या बनेगा?
हम चाहते हैं कि मोदी सरकार को GST 5% जो है वापस लेना चाहिए। Finance account assistant candidates also demonstrated in Jammu for their demands today. The protesters expressed their anger by raising slogans. The protesters said that they had studied for this examination after spending many years, and in the end they are being told that this list will be scrapped, which is absolutely not justice. They expressed their displeasure over this. They demanded that action should be taken against the culprits, but the list should not be scrapped. Justice! We want justice! Justice! We want 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 justice! हमारे यहाँ प्रोटेस्ट का बात सिर्फ इतनी सी है कि हम क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमें प्रेम्बल में पढ़ाया जाता है जस्टिस के बारे में। तो क्या ये जस्टिस है? 14 दिन से हम अपनी यहाँ हक के लिए भीख मांग रहे हैं, ये जस्टिस है आपका? सर बोल रहे थे सब इंस्पेक्टर में धांधलियाँ होती थी जब यहाँ सरकारें होती थी, ठीक है ना सर? बोलते हैं लेकिन पकड़ी नहीं जाती थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि पहले हम रिटर्न टेस्ट लेते हैं सब इंस्पेक्टर है, उसके बाद हम फिजिकल लेते हैं, लेकिन धांधली रिटर्न में भी हो गई। सर आप हमें बताइए हमारा कसूर कहाँ है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का कसूर है। आप सरकारों पे बोल रहे हैं सरकार ने ये किया वो किया, आप क्या कर रहे हैं खुद? सर आप हमें बताइए ना। आप बोल रहे हैं CBI दस्तकें दे रही है घरों पे, जो मेरिटोरियस थे जिन्हें अपनी काबिलियत से सब इंस्पेक्टर तक क्वालिफाई किया था, उनके घरों पे कौन दस्तक दे रहा है? सर आप हमें ये बताइए। 14 डे यहाँ पे है, कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं, बट अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। बोल रहे हैं धांधली भी हुई है, तो बंदूकों को बाहर निकालिए। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों आप सज़ा दे रहे हैं? किस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं? आप हमें जस्ट ये क्लियर कीजिए कि हम सबका कसूर क्या है। अगर आप हमारा कसूर बताएंगे तो हम अभी उठ के चलने को रेडी हैं यहाँ से। जस्ट टेल अस व्हाट्स आवर फॉल्ट, वी आर रेडी टू मूव। आज हमें यहाँ डे 14 हो गया, ठीक है। ये हम बार बार बताते हैं कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। आज मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सा दिन है, आज इन पे बात करेंगे जो ये बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं आज कि पहले वाली सरकारों ने क्या किया, उनमें धांधलियाँ होती थी तो वो कुछ नहीं करते थे। हम क्या कर रहे हैं कि हम फिल्टर करें, हम करेंगे इंक्वायरी वगैरह, हम कड़े फैसले लेंगे। मुझे ये बताओ कि गलती हुई किसकी तरफ से है? आप बोल रहे हो इंक्वायरी करनी है, गलतियाँ हुई किसकी तरफ से हैं? गलतियाँ भी तो आपकी तरफ से हुई हैं। पुरानी सरकारों ने क्या किया वो हमें लेना देना नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हमने किसको चुन के लाया? आप लोगों को चुन के लाया ना। अब आप लोग भी हमारे साथ ये कर रहे हो। 370 टूटा, हमने उसका वेलकम किया। आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हमने गलती कर दी उसका वेलकम करके। अब इस मुद्दे को आप बिल्कुल पॉलिटिसाइज कर रहे हो। इलेक्शन ही आ रही है, हमें साफ आज हमें बाहर लोग बोलते हैं भाई तुम्हें पता तुम्हें लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? इलेक्शन ही आ रही है, ये पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। और भाई पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हो, उसमें हमारी क्या गलती है? A press conference was organized by Bajrang Dal today. Speaking on the occasion, national convener of the party, Neeraj, said that Shri Buddha Amarnath Yatra will inaugurated on 28th July at Bhagwati Nagar base camp, and the first batch of the Yatra will go on 29th July. He appealed to the devotees to participate enthusiastically in this. On this occasion, he also shared other information related to this. वर्ष में बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो बजरंग दल के द्वारा संचालित की जाती है, उसमें संपूर्ण देश भर से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से समाज के लोगों को समाज में संपर्क करके यात्रियों के रूप में श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ चट्टानी तो जम्मू से पुंछ और पुंछ से फिर मंडी राजपुरा क्षेत्र में है, प्राचीन स्थान है, उसका बड़ा महत्व है अपने धार्मिकता में और हमारे सभी ग्रंथों में उसका उल्लेख है। अमरनाथ जी की यात्रा के साथ साथ में इस यात्रा पर भी बड़े पैमाने पर यात्री जाते हैं। 2005 में बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा बजरंग दल ने प्रारंभ की थी। एकमात्र कारण था कि उस क्षेत्र में रहने वाला जो हिंदू समाज है, जो वर्तमान समय में वो अल्पसंख्यक है, जिसका पलायन हो गया आतंकवादी गतिविधियों के कारण, उनकी बर्बरता के कारण, जो उनका पलायन हुआ, तो पलायन उनका नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। यह मन में विचार लेकर के बजरंग दल ने यह साहसिक यात्रा प्रारंभ की और अपनी राष्ट्रीय यात्रा के रूप में इसकी पहचान दी कि बजरंग दल एक राष्ट्रीय यात्रा करेगा। उसके माध्यम से जो वहाँ का हिंदू समाज है, जो पलायन कर रहा था, उसका मनोबल बढ़े, वो अपने आप को अकेला महसूस न करे। देश का आखिरी छोर है पुंछ, लेकिन उस पुंछ के आखिरी क्षेत्र में भी पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के किनारे भी जो रहता है समाज, वहाँ वो अकेला न रहे, उसके साथ भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे और उनका संकट भी अपना संकट मानेंगे, उनके मनोबल को बढ़ाएंगे।
ताकि उनका पलायन रुके। उसका परिणाम भी आया। 2005 से अब तक यात्रा को 13 वर्ष हो चुके हैं। इस 13 वर्ष की यात्रा में ध्यान में आया कि आज वहाँ पर पलायन नहीं, पराक्रम का भाव समाज में जागृत हुआ और समाज ने पलायन अपना रोका। आज वो इस बात को कहते भी हैं समाज के बीच में कि बैजंतल ने जो साहसिक यात्रा प्रारंभ की थी उसका परिणाम है, सुपरिणाम है क्या हिंदू समाज वहाँ सबके बीच में सम्मान के साथ जी रहा है, रह रहा है। उसके साथ साथ में यह यात्रा राष्ट्रीय यात्रा है, राष्ट्रीय भाव है, इसमें देशभक्ति से ओतप्रोत है। देश के जो सैनिक देश की सीमा की रक्षा कर रहे हैं उनके भी दर्शन हो कि सैनिक किस प्रकार से सेना की रक्षा करता है और समाज के बीच में युवा नौजवानों के बीच में गौरव का भाव हो, इसलिए उनके दर्शन की भी ये यात्रा है। इस यात्रा के द्वारा हमने संपूर्ण देश से और पुंछ में रहने वाले राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर ये रहने वाले समाज को देश से जोड़ने का काम किया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये यात्रा एक तरह से सेतु का काम कर रही है। Today, DDC member Surenkot Shahnawaz Chaudhary inaugurated the development works of Chamber of Bar Association Surenkot. President of Bar Association Advocate Majid Khan and Advocate Sheikh Mukhtar and all other bar members and many other members of civil society were present on this occasion. Advocate Shiraz Bajjar, Advocate Iftikhar Shah, Advocate Mumtaz Shah, Advocate Iqbal Shah, Advocate Shaukat Ali and other members of the Bar Association thanked the DDC member. है बार फ्रेटर्निटी के सारे सीनियर मेंबर्स यहाँ पे आज मौजूद हैं। जो बार फ्रेटर्निटी है, जो एडवोकेट्स हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड और एस्टीम्ड फ्रेटर्निटी हमारे समाज की, हमारी सोसाइटी की है। और मैं सारे सुरनकोट के बार एसोसिएशन के मेंबर्स का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि सोसाइटी को बिल्ड करने में सुरनकोट के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन क्योंकि इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद उनको यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं थी और यहाँ चैम्बर्स बैठने के लिए नहीं थे एडवोकेट्स को, और ओपन में बाहर बारिश में धूप में बहुत प्रॉब्लम थी और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। और डीडीसी बनने के बाद जब मैं इनके बीच आया, इन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत की और मैंने उस वक्त कमिटमेंट की थी कि ये आपको एक जो है कुछ फंड्स मैनेज करके मैं दूंगा जिसमें आप चैम्बर्स भी बनाएंगे और एक बार के लिए मीटिंग हॉल भी बनाएंगे। तो मुझे आज खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कमिटमेंट पूरी हुई। आज हमने चैम्बर्स के लिए जो है यहाँ पे आज काम की शुरुआत की है, आज किया है इस काम को। आज इंशाल्लाह जल्दी ही काम मुकम्मल होगा और उसके थोड़े अरसे बाद जो है इंशाल्लाह मुकम्मल होने के बाद जो मीटिंग हॉल है उसके लिए भी इंशाल्लाह पैसा रिलीज होगा और उसका काम भी इंशाल्लाह शुरू करवाएंगे। मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी किसी भी बात को जो उजागर करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर ये दुरुस्त बात है कि जो मेरे साथियों ने इससे पहले भी कहा है कि यहाँ पर हमारे वकील हजरात जो हैं वो बाहर बैठ के कभी बारिश में धूप में खस्ता हालत होती थी, तो जनाब मुर्तज़ा खान साहब ने अगर इससे पहले किया था तो उससे बढ़ चढ़कर आज शाहनवाज साहब ने किया है। हम इनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बार एसोसिएशन बार के लिए सोचा है। तो हम इनका शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुर्तज़ा खान साहब ने जो XMLC मेंबर थे उन्होंने बार एसोसिएशन में फंडिंग की थी। उसके अलावा आज तक हमारे बड़े बड़े कद्दावर लीडर यहाँ सुरनकोट से हुए। Fair price shops dealers protest in Srinagar in support of their demands. During this, they expressed displeasure by shouting slogans. While speaking on this occasion, they said that they have not been given their salary for a long time, due to which they are upset. They demanded to increase their commission and pay their salaries as soon as possible. फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के फेयर प्राइस डीलर्स यहाँ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। मैं ऑल इंडिया फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जम्मू कश्मीर फेयर प्राइस शॉप का डीलर्स एसोसिएशन का सदर हूँ। हम गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से आपके माध्यम से एक जो अहम बात पहुँचानी चाहते हैं कि फेयर प्राइस शॉप डीलर्स का 2.5 साल का कमीशन इस वक्त जो वाजिबुल अदा है गवर्नमेंट फराहम नहीं कर रही है। इसलिए हम अब सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो चुके हैं और हम आपके प्रेस के माध्यम से गवर्नर, इंतज़ामिया, खासकर जो
गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं और उसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र जो विवेक भारद्वाज साहब हैं और उसके साथ हमारे फूड डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी जुबैर साहब हैं, उनसे आपके ज़रिए ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो वाजिबुल अदा 2.5 साल का कमीशन है ये 1 महीने के अंदर अंदर फराहम होना चाहिए हर डीलर को अपने अकाउंट में जाना। अगर ऐसा ना हुआ तो हमने ऑलरेडी फैसला किया कि 2 अगस्त को हम रामलला मैदान से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करने जो है ऑल इंडिया फेडरेशन के बैनर तले, तो वहाँ हम अपना एहतजाज दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ हमने यहाँ फैसला लिया अगर हमारी मांगों को पशपुश डाला गया तो हम फिर 15 अगस्त से भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। हमारी एक डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड, मेन डिमांड है हमारी जो वेजेस है वो पूरी तौर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इंस्ट्रक्टर का है हर महीने फराहम होनी चाहिए। उसके साथ हमारे और भी बहुत जो जायज़ मसाइल उन पर भी तवज्जो होनी चाहिए। Say yes to sports, no to drugs on the instructions of SSP Kupwara Manhas, JKPS SHO Karna Inspector Mudassir Ahmed inaugurated Premier Volleyball League at Government Degree College, Tangdar. Speaking on the occasion, SHO Karna said that sports activities are necessary for healthy youth and J&K Police has been providing opportunities, platforms for such sports activities so that local youth can showcase their talent and stay away from drugs. Let us tell you that this league will run for about a week in which 16 teams will participate. Digital land cards were distributed among the landowners of Mutton Changas and Anantnag in Dag Bungalow, Anantnag in the presence of ARC Anantnag and other post officers. Speaking on the occasion, the officers present there said that under the Digital India program, digital land cards were distributed to the people in Anantnag. They could get all the facilities digitally. पहले डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी स्टार्ट की। ये जो डिजिटाइजेशन ऑफ जमाबंदी है ये कोई एक खाली स्कैन नहीं हम कर रहे हैं पुराने किसी डॉक्यूमेंट का, बल्कि एक प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम एंट्री कर रहे हैं जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स का और सारी जो हिस्सा कशी है हर एक चीज़ का। तो हमने जो अभी तक है जो ऑनलाइन हमारे हैं तकरीबन 100 गांव हमारे हैं जो क्वालिटी चेक और क्वालिटी चेक के बगैर हमने अभी तक डिजिटाइज किए हुए हैं। और आज हमने क्योंकि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत ये हुआ, तो आज हमने ये जो तकरीब थी क्योंकि डिजिटल इंडिया वीक चल रहा है, तो आज हमने हमारे तहसील अनंत जो नज़दीकी तहसील है, तहसील अनंतनाग है, मटन है और शांगस है, उसकी तकरीब यहाँ पे डाक बंगलो खनबल में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है उसमें हमने अपने सारे जो इज़्ज़त लैंड ओनर्स हैं, ज़मींदार साहिबान हैं, उन सबको बुला के उनके पासबुक्स हैंड ओवर कर दिए। An oil tanker going from Srinagar to Bathinda slipped off the road due to loss of balance and got into an accident. Indian Army swung into action and rescued both the driver and co-driver. There was no injury to the driver and co-driver of the vehicle. Meanwhile, the people thanked the army. बंद है वो कुछ जला रहा है लाइट वाली बैटरी तो मौसम अचानक खराब होने के कारण हमारी रात को गाड़ी फिसल गई और हमने आर्मी वालों को सूचित किया। उसके बाद हमारी हेल्प की और रात को ठहरने की व्यवस्था की हमारी और खाने की व्यवस्था की। उसके बाद सुबह आर्मी वाले हमारे साथ आए, सुबह गाड़ी के पास उन्होंने रिकवरी वैन और सिविल वाली क्रेन को बुलाया, दोनों की हेल्प से हमारी गाड़ी सुरक्षित निकलवाई। हम दोनों बिना खर्चे से, हमसे कोई 1 रुपया नहीं लिया सर। 18,313 new corona infected have been found in the country on Wednesday. These are higher than on Tuesday. On Tuesday, 14,830 new cases were found. 57 patients succumbed to the epidemic on Wednesday. So that's all for today's bulletin. Keep watching JKC's English Bulletin. Take care of yourself. जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स